तो ये थी कवर की नहीं कनाडा की कहानी आई डू दैट एवरी टाइम। तो ये थी कवर की कहानी। 1 2 3 गो। तो ये थी कैनेडा। 1 2 3 गो। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज तक हमने जितने भी इंटरव्यूज लिए हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एक्चुअली गॉट अ जॉब इन अ वीक, या उनको 1 महीना लगा, या फिर वो इंडिया से ही जॉब लेकर आए थे। लेकिन आज हम जिसका इंटरव्यू करने वाले हैं, उन्हें 6 महीने लग गए थे टू गेट अ जॉब। तो आज वील अंडरस्टैंड व्हाट हिज स्ट्रगल्स वर, हाउ डिड ही फाइनली लैंड अ जॉब, एंड हाउ ही इज डूइंग राइट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट। First we actually talk about you, so where you are from, and tell about when you came to Canada. All right, so I'm Kamarjeet Singh, and I was born and brought up in the city of Bathinda, which is in Punjab. Or I've completed my computer engineering from the very own Punjab Technical University. But then programming वगैरह में मेरा कोई खास interest नहीं था, so I went on network engineering is the field, was the field which I liked. CNA किया, certifications कर ली तभी के तभी college में because I really liked it. And then I moved on to become a solutions architect, sales engineer. Telecom में एक ऐसा position है जिसमें they always need somebody in the sales team who has a technical background. So we started our journey in 2018. Okay. After my marriage, within a month हमने 1-2 महीने के अंदर हमने preparation किया अपना for IELTS. We both got our CLB9 scores 8777, and then since my wife got masters थी इसके पास, so हमारा cut off score हो गया. और on October 3rd we applied for we submitted a file 12th December, so within 2 months and 10 days we got a PR. और प्रोसेस हमने सारा खुद से किया है। इनफैक्ट मेरी वाइफ ने जब शुरू किया था तो उसने इंडिया में कोई है कंसल्टेंसी, आई डोंट नो, नाम भूल गया हूँ, वो हायर किया हुआ था। उनका है बहुत धीरे धीरे काम करना, 4 दिन बाद रिप्लाई करना, और वो ठीक करवाते नहीं करवाते। सो अच्छा है 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए देने से अच्छा यू गो फॉर इट। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, एवरीथिंग। So tell us something about so when you landed here, when did you say you landed here? Like which month? Okay, so yeah, as I said, 12th December 2018, I got my PR. Right. And I landed here on 1st May 2019. Yeah. And what was your job experience like? How did you find your job? My designation in India, it's a little tricky situation. Sales engineer positions zyada nahi hoti hain. So I tried network engineering as well. I've tried project management because जिस position पे, जैसे मैंने आपको बताया, मैं sales engineer था. So at that position, you are dealing with project managers, you are dealing with product managers, right. network engineers से. तो मुझे पता है कि कौन क्या करता है. So I'm well aware of all the positions और उनके काम क्या हैं. But मेरा personal experience as a sales engineer है. So right. So I was trying for every position, but then the response from the companies were not that great. So alternative देखो, 2-3 महीने स्ट्रगल किया, कोशिश की, कुछ भी मिले, लेकिन बात नहीं बनी. तो और जॉब कैसे ढूंढना है उसके लिए भी, जैसे कैनेडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर, मैं आपको नाम बता सकता हूँ. कॉस्टी इमिग्रेशन सर्विसेज है. There's another organization called Triac Mentoring है. ठीक है, तो टोरंटो बेस्ड, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर they connect you to people from your industry, and you get to spend around 6 hours with them. इसमें कि आपकी one-on-one meetings होती हैं. ठीक है, people who are ready to mentor newcomers to Canada. They spare some time from their regular office hours to meet you, to guide you how to apply for a job. तो आप वो भी कर सकते हैं. क्या पता जिस बंदे से आप मिल रहे हैं उसकी पोजीशन अच्छी हो, वो आपसे बात करके that he or she gets impressed, वो भी रेफर कर सकते हैं. So I did that as well. So this is a Triac Costy Immigration Services है. तो ये सब आपको हेल्प करते हैं to understand the Canadian culture. Right. हमारे बहुत इंडिया में लोग हैं, या
other than India, Asian countries, or जो भी immigrate कर रहा है, they must be working with people from different countries, maybe UK, US और Canada, बात करते होंगे. But यहाँ पर आके आप सच में जब बात करते हो लोगों से, that's a different thing. The remote thing versus physically present होना, यहाँ पर बात करना अलग है. तो you get that confidence, you meet people from other countries और आप बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ नई चीज यहाँ पता लगती है. तो कॉस्टी वगैरह में आपको देखिए प्रिंट आपने रिज्यूमे बनाने हैं, कैसा बनाना है वो आपको सब सिखाएंगे. हाउ यू वुड अप्रोच द मार्केट, you will get all the government based figures, क्या सैलरी है, क्या एक्सपेक्टेशन होगी. There are some confidence building activities there within such organization. You go and get to do extempores in front of people, again in English, and they will set you up in a team when you have to kind of do presentations. वो interviews भी आपके लिए set up करते हैं, mock interviews. So wherein what you have to do, you have to first download a posting, job position, and then make a resume based on that. So आपको first of all master resume बनाना सिखाते हैं, जिसमें it is fully detailed, maybe 2-3 pages, and then for every position you are applying, you would have to prepare a tailored resume. Okay, और वो 2 पेज 1.5 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अच्छा. तो वो ऐसा सिखाते हैं कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, कौन कौन से वर्ड्स आपको डालने हैं. सो यू विल प्रैक्टिस 7-8 आप रेज्यूमे बनाते हो, फिर सब एक दूसरे का क्रॉस चेक करते हैं कि अच्छा कितने वर्ड्स मिले. एंड देन देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स व्हिच कैन आल्सो टेल यू व्हाट इज योर मैच परसेंटेज अगेंस्ट द जॉब पोस्टिंग. ओके. तो आप एक जगह जॉब पोस्टिंग रखो, दूसरी जगह अपना रिज्यूमे डालो, यू विल गेट एन आंसर. ओके, दिस इज 50%, यू आर मिसिंग दीज मेनी इंपॉर्टेंट वर्ड्स. यू गेट दैट. Oh, wow. So all this information is available. Okay. उसके अलावा रिज्यूम प्रिंट आउट करना है, किसी भी तरह की सप्लाई चाहिए, पेन पेंसिल कुछ भी पेपर. दे आल्सो गिव यू फ्री टिकट्स, बट बस टिकट्स टू कम एंड देन स्टडी. Wow. And it's always open. If you do not have internet connection at home, you do not have computers, whatever you want, they will give you everything. I used to look for that position. I used to go to company's website, look for openings. Okay, once I found there's a job which is a good more than 80% match against my profile. I've only applied for those jobs. 50% I've never applied. अच्छा. क्योंकि वो मैंने फर्स्ट 1-2 महीने में कर लिया था, मुझे पता लग गया था कुछ नहीं हो रहा है. And then I started doing focusing on only those jobs जो ऐसे थे. So what I used to do, वहाँ apply करना ही करना है. First make your tailored resume, make it a 2-pager, 1.5 pager, and then start looking for people on LinkedIn who are HRs in that company. So let's suppose if you are applying for a consultant position, or let's take my example, sales engineer. Look for manager sales engineers, director sales engineering, और सबको search करो, लोगों को send them personalized messages telling them, okay, look, I've seen a post, there's an open position in your organization. So give them confidence. और देखिए 99% इसमें भी फेलियर होगा, बहुत कम लोग रिस्पॉन्स करते हैं. Right. लेकिन अगर करते हैं, एटलीस्ट देयर इज जब तक आपने किया नहीं तब तक नो नहीं है. एक होता है हाँ या ना. मेरे को, and I totally agree with you. That's how I even got the job, right? So and मेरा ये मानना है कि आप अगर 100 बार ऐसे करोगे तो आपको 5 रिस्पॉन्स आएंगे, लेकिन आपको जॉब एक ही चाहिए. यस, जॉब तो एक ही चाहिए ना हमें. तो 5 में से एक भी अगर कहीं पे ठीक बैठ गया तो that's how you get a job. यहाँ पहले आकर कनाडा में आके योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू गेट अ जॉब. अदरवाइज $55 का $1 बनता है और यहाँ सब कुछ महंगा ही है, तो वो आपकी सेविंग्स जल्दी उड़ जाएंगी, ज्यादा टाइम रहेंगी नहीं. बेटर इज टू फेच अ जॉब. और अगर ड्रीम जॉब नहीं मिल रहा है तो बेटर get a job wherein you can get what $14 यहाँ का minimum wage है per hour. You get a $15-16 वाला job, which is good enough, I'm telling you. We talked about a startup job. So let's talk about how you got your first job first of all, and what was that job, and कैसा experience था वहाँ पे.
सो नाउ मैं आपको बताता हूँ मुझे जॉब कैसे मिला। ना प्रॉब्लम है आजकल वो जॉब फेयर्स नहीं हो रहे होंगे बिकॉज ऑफ राइट। कोविड। Otherwise, every 2 months there's a hotel, there's a place in Mississauga. You would see, tickets, or you would see those events on eventbrite.ca or Yeah. eventbrite.com. They always, companies, sales companies, telecom companies, insurance companies, they organize job fairs, Hmm. and all those jobs are at least $14, and they go up to $20. So I attended one of them, and I got a field sales job in a Canadian telecom company. It was really hard. Why? Because I got a जो मेरा ऑफिस था that was in north of Toronto. So हर एक हफ्ते में I used to go to different areas, and I'm in Brampton. So I was in Brampton at that time as well. अच्छा, I had to travel 2 hours every day one way, अच्छा, and then work there for 8.5 hours. सारा का सारा time I was on the road, and then I used to come back at 11, 12 in the night, wow, and then again start applying for the jobs. So whosoever is here, still struggle है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शन ये है, देखिए उससे डरे मत फर्स्ट ऑफ ऑल। hmm, आपको दिमाग में ये रखना है कि मैं सांस उसी दिन लूंगा जिस दिन मुझे वो जॉब मिल जाएगी जो मैं चाहता हूँ। hmm, अगर वो नहीं भी मिली, स्टार्ट फॉर समथिंग एल्स, ट्राई टू स्टे विद इन योर इंडस्ट्री, hmm, ठीक है, और आपको मिल जाएगा। hmm, अगर आप मेहनत करोगे वो मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। इवन दो मैंने लंच के अंदर बैठ के भी जॉब अप्लाई किए हैं, अच्छा, जिस अभी हमारा लंच क्या टिम हॉटन्स में होता था या मैकडी में होता था, तो उसी टाइम के अंदर लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनाओ, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब। तो ये था 2 महीने वो जॉब किया, और उसी टाइम जॉब करते करते मुझे ये जॉब भी मिला। सो हाउ आई फाउंड दिस जॉब, मैंने अप्लाई किया, मुझे पता लग गया सेल्स इंजीनियर है, मैं सेल्स इंजीनियर था और मुझे यही करना है। रिज्यूमे बनाया एक दिन लगा के। मेरी जो ये कंपनी है ये 3 कंट्रीज में, यूके, यूएस एंड कनाडा। hmm, इतने भी लोग मिले इंटरनेट पे, लिंक्डइन पे, जो ये पोजीशन पे थे, मुझे मिल गए 4-5 लोग, मैंने सबको भेजा, मुझे इस टीम का मैनेजर भी मिल गया। सिंस ये लिंक्डइन पे भी थी पोस्टिंग, मैंने लिंक्डइन पे भी अप्लाई किया, और कंपनी पोर्टल पे भी किया। इन कंपनी के जितने भी एचआर थे, भले वो एचआर कोऑर्डिनेटर्स हों, पेरोल वाले हों, सबको रीच आउट टू एवरीवन। wow, So this and the same thing I did for every other job I applied. hmm, क्या पता, और मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि क्या कम हुए हैं। आई यूज्ड टू रीच आउट डायरेक्टली टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनीज, टेलिंग देम ओके लुक, आई फाउंड दिस जॉब and nobody has replied back, it's been 2 weeks, so I thought you are the vice president of this and this. उन्होंने भी मेरे इंटरव्यूज करवाए हैं, and everything counts. You have to be, ये भूल जाओ कि मुझे ये नहीं करना है, you have to do everything. और अगर आपका शाई नेचर है, और कोई भी अगर इंडिया में है, मैं नहीं करता हूँ, मैं ऐसे hmm, करता हूँ, you have to change things. You have to change your perspective. yeah, no, I That totally, is very important. So 6 महीने का even though struggle था, but I found my dream job, and I'm in a far better position, versus I would say कि इंडिया में मेरी जो स्टेटस था, I will not say status, I will not use that word, but उससे भी I'm earning even better than that, even at a better position, और बड़े अकाउंट्स मिल गए हैं मुझे। wow, और अब इनफैक्ट सामने से एचआर के खुद फोन आते हैं, नाउ व्हेन आई हैव गॉट अ जॉब। प्रॉब्लम थी कि जब जॉब नहीं थे तब मैं रीच आउट करता था लोगों को, लेकिन no, अब जब जॉब है, नाउ पीपल कीप calling me, okay, we have this opening, I'm okay, I'm not in a mood to make any changes. इंडिया में भी हम्म, काम कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे थे, टेलीकॉम में ही है, सो वर्क कल्चर में क्या हम्म। डिफरेंसेस पता चल रहे हैं? वर्क कल्चर में बहुत डिफरेंस है। इंडिया में क्या है, मैनेजर वुड कॉल यू इवन ऑन अ संडे or even after the office hours, and they'll tell you that then this thing needs to be completed. Hmm, मेरे मैनेजर्स अच्छे रहे हैं, मैं उनको कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, बट थे टीममेट्स, या वो बोल ही देते थे। इंडिया में देखो कल्चर ही अलग है। यहाँ पर नोबडी इज गोना बॉदर यू आफ्टर 6 मैक्सिमम, hmm, 6 क्या 5:34 पे ही बंद हो जाता है। वेरी इजी, एवरीबडी सो अंडरस्टैंडिंग, कोई आप पे जबरदस्ती पुश नहीं करता, और सब आपकी हेल्प करते हैं। सो hmm, ऑफ कोर्स ये डिफरेंस 100% डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि काम कम हुआ है, काम उतना ही है, लेकिन अब मैं थोड़ा फ्रीली करता हूँ। अगर मैं किसी को भी बता भी दूं, ओके लुक आई नीड 3 days, इंडिया में 3 days नहीं मांग सकते आप।
you know, they need everything by the end of the day. देखो ऐसा होता है कि कई बार ना सिर्फ अच्छी चीजें हम दिखाते हैं तो सबको लगता है कि इजी है सब। इजी नहीं है, बट अगर लगे रहोगे, एंड दैट्स व्हाट यू आर सेइंग राइट, अगर लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे एंड ये नहीं सोचोगे कि मेरे को ये काम करना है, ये नहीं करना है, और सब कुछ पॉजिटिव में लोगे, तो आई थिंक लाइक यू सेड, यू फाउंड योर ड्रीम जॉब एंड नाउ यू आर डूइंग मच बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग इन इंडिया। यू एक्चुअली वेंट टू द नेक्स्ट लेवल, बट बीच में वो अग्नि परीक्षा से करना पड़ता है सबको वो बस बीच में था, and I think you are in a better place right now. तो ये थी कनाडा की कहानी कवर की जुबानी। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके जाना, एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।